Class 3. Today we'll start in your MCB Oxford New Pathways Chapter 9, A Day at the Swamp. Swamp means दलदली ज़मीन जो होती है उसको swamp कहते हैं. So say this word dinosaur. Dinosaur. So this means terrible lizard. भयानक छिपकली. So dinosaurs, you can say it dino, right? So dino is called dino. How to pronunciate it? And then it is spelled as dinosaurs. So dinosaurs lived on the earth millions of years ago. Here are a few kinds of dinosaurs. Learn to say their names. Millions, 1 million is equal to 10 lakhs. Millions of years ago, लाखों साल पहले dinosaurs used to live on the earth. So there are different types of dinosaurs. How we have been able to make them, find out how they look like? We have found their skeletons and as fossils. Fossils are those remains of the dead animals and plants which were buried deep down the earth millions of years ago. Now we get them and try to find out how old they are and of which plant or animal they are. So this is Brontosaurus. Learn its spelling. This is Brachiosaurus. Brachio, which has a long neck. And this is Diplodocus. Learn the spellings, right? It is also a very long neck and a long tail also. Huge animals they were. And now they are all extinct, means now they don't exist on earth. They are all dead. There are different reasons due to which they might have got extinct, like earthquakes or floods or lack of food, because they were huge animals. They needed a lot of food, and sometimes it might have not rained or it might have become dry. Drought conditions might have prevailed and they didn't get food and they died. So the last is Tyrannosaurus. Now we know that most dinosaurs are ate plants because of their flat teeth and long necks. तो ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे, जैसे जिराफ्स होते हैं, तो उनकी नेक्स इसीलिए लंबी थी और उनके जो दांत थे वो फ्लैट यानी चपटे थे, जैसे हमारे मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं उस टाइप से. और हमें कैसे पता चलता है कि ये प्लांट्स वगैरह ही खाते थे? बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, लॉन्ग नेक्स एंड फ्लैट टीथ एट्सेट्रा. So we used to reach the trees. But a few dinosaurs like that Tyrannosaurus ate other dinosaurs because they had pointed and very sharp teeth, like that of a lion or a tiger or a dog, to tear the flesh. So due to their teeth, we come to know that they used to eat other animals, especially other dinosaurs, because of their, as you can see, their teeth. And they have got front legs are very short and the hind legs are long, so that they can jump and run very fast. So now there is an interesting story which you have to read. Now, Belinda, the Brontosaurus lived by a swamp 5 crore years ago. 5 करोड़ साल पहले, 15 करोड़ 15 crore years back. तब रहते थे हमारे धरती पे ये डायनासोर्स. उसमें ऑथर ने एक इमेजिनरी स्टोरी लिखी है जिसमें कि एक ब्रॉन्टोसॉरस थी. ब्रॉन्टोसॉरस देखिए कैसे थे, एक बार फिर देखते हैं. ब्रॉन्टोसॉरस ये इस तरह के, तो इसको समझ लीजिए. शी वॉज बेलिंडा. शी यूज्ड टू लिव बाय अ स्वैम्प. बाय अ स्वैम्प उसके किनारे रहते थे, अंदर नहीं रहते थे उसके. दे आर लैंड एनिमल्स, दे आर नॉट वाटर एनिमल्स. सो शी यूज्ड टू लिव बिसाइड अ स्वैम्प, यानी दलदल, उसके किनारे ये रहती थी.
Day and night she swam through the swamp, swaying her long neck from side to side. She ate tender marsh plants. तो दिन रात जो थी वो किस में तैरती थी? उस दलदल में। स्वेइंग मतलब हिलाती थी अपनी लंबी गर्दन को एक से दूसरी तरफ। और क्या खाती थी वो? उस दलदल के जो पौधे थे, पेड़ पौधे, उनको वो खाती थी। On special occasions such as a birthday, she stepped onto hard and onto land and stretched out her strong neck. It towered above the palm trees and pines. तो कभी कभी क्या होता था, स्पेशल जब अवसर होते थे, जैसे उसका बर्थडे होता था, तो वो बाहर आ जाती थी ज़मीन पे और अपनी जो गर्दन थी उसको पूरी तरह सीधा कर लेती थी, स्ट्रेच करती थी। और अब उसकी स्ट्रॉन्ग भी थी नेक, तो वो टावर्ड अबव मीन्स इट वाज लॉन्गर देन, सबसे ऊंची निकल जाती थी उसकी जो गर्दन थी। जितने भी वहाँ पे पाम ट्रीज़ होते हैं, palm is a kind of a tree, as you can see that like coconut tree, a palm tree is there. तो उसके ऊपर से उसकी गर्दन उससे उनसे भी लंबी, और पाइन्स, ये भी एक पहाड़ों पे उगने वाले पेड़ होते हैं पाइन्स, तो उससे भी लंबी उसकी गर्दन हो जाती थी। बट बेलिंडा wasn't as tall as her cousins Danny the Diplodocus, who stood almost 90 feet high. वो इतनी लंबी नहीं थी जैसे जितने उसके कज़न्स थे। उसमें एक तो था डैनी, जो कि एक डिप्लोडॉकस था, और वो लगभग 90 फीट ऊंचा था। सोचिए आप, 5 फीट, हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं 5 to 6 फीट हाई होते हैं, तो ये 90 फीट हाई। और बेन द ब्रेकियोसॉरस वॉज इवन टॉलर, एंड द ब्रेकियोसॉरस, उनका जो कज़न था बेन, उससे भी लंबा था। ब्रॉन्टोसॉरस, डिप्लोडॉकस and Brachiosaurus belonged to the family called sauropods, who were very large herbivorous dinosaurs. तो ये तीनों तरह के जो डायनासोर्स होते हैं, कौन कौन से? ब्रॉन्टोसॉरस, डिप्लोडॉकस एंड ब्रेकियोसॉरस। ये एक फैमिली को बिलोंग करते हैं जिनको कहते हैं SAUROPODS, sauropods। बहुत ही बड़े डायनासोर्स थे। हर्बीवोरस का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे खाने वाले थे। कार्निवोरस होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। वन डे व्हेन दे वर बोर्ड विद ग्लाइडिंग इन द वाटर, ग्लाइडिंग मीन्स मूविंग स्मूथली विदाउट एफर्ट, आराम से तैरना जिसको बोलते हैं, उसको ग्लाइड करना कहते हैं। तो वो जब बोर हो गए ऐसे तैरते तैरते पानी में, द थ्री कजन्स लिफ्टेड their huge bodies out of the swamp and planted their massive legs on land. तो तीनों कज़न्स जो थे, उन्होंने अपने शरीर को उठाया, कहाँ से? उस दलदल से निकाला। बड़े बड़े शरीर थे उनके, उनको चलने फिरने, बाहर दलदल से आने में भी बहुत एफर्ट लगता होगा। और उन्होंने प्लांट किया, तो अपने प्लेस किया उन्होंने अपने, मैसिव मीन्स वेरी ह्यूज, बड़े बड़े अपनी टांगों को धरती पर टिकाया। दे शुक द वाटर फ्रॉम देयर बैक्स एंड इट स्प्रेड आउट अराउंड देम लाइक अ समर शावर। उन्होंने जो था अपने पानी जो था उसको झाड़ा अपने पीठ से, तो वो चारों तरफ कैसे स्प्रे हो गया? स्प्रेड मीन्स मेड वाटर और लिक्विड फॉल इन फाइन ड्रॉप्स। तो बूंदों के रूप में, फव्वारे के रूप में वो चारों तरफ फैल गया, जैसे कि गर्मी में आने वाली बारिश होती है, उस तरह से। Danny wanted to play hide and seek, but they were so much larger than any of the trees that it was impossible for them to hide. डैनी ने कहा हाइड एंड सीख खेलें, छुपन छुपाई, लेकिन वो इतने बड़े बड़े थे कि कोई भी पेड़ उन्हें असंभव था कि उन्हें छुपा लेता। सो बेन सजेस्टेड लेट अस प्ले चेज, चलो हम जो चेज का गेम खेलते हैं, जिसमें एक दूसरे का पीछा करके छूना होता है एक दूसरे को, बेन ने कहा। बट वी मस्ट नॉट गो फार फ्रॉम द स्वम्प। मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म है मस्टंट, MEST, NOT का हमने ओ हटा के एन के आगे अपोस्ट्रोफी लगा के टी लिख देते हैं।
तो बेलिंडा ने उनको वार्निंग दी कि जो है हमको इस दलदल से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। दे न्यू इट कुड बी डेंजरस टू गो टू फार फ्रॉम होम। उनको पता था कि अपना ये जो घर है हमारा दलदल का, उससे बहुत दूर जाना ख़तरनाक हो सकता है। sauropods were only comfortable when they lived immersed in water। ये जो sauropods होते हैं ये तभी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनको अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं जब वो पानी में डूबे रहते हैं। जैसे हमारे हिप्पोपोटामस होते हैं ना, पानी के अंदर ज़्यादा रहते हैं। ऑल्सो दे वर टू हैवी टू रन अवे फ्रॉम अ हंग्री फ्लैश ईटिंग डायनासोर। और फिर वो इतने भारी होते हैं कि भाग ही नहीं पाते हैं। अगर उनके पीछे कोई उनको खाने वाला एक डायनासोर पड़ जाए जो फ्लैश ईटिंग यानी कार्निवोरस होगा और भूखा होगा, तो वो भाग भी नहीं पाएंगे। सो एट फर्स्ट दे प्लेड among the bushes and trees around the water, but soon the game took them farther and farther into the forest। पहले तो वो वहीं आसपास के पेड़ों और झाड़ियों के बीच में खेलते रहे, लेकिन जो उनका जो गेम था वो उनको दूर दूर ले जाता गया। कहाँ पर? उस जंगल में। The hot sun descended towards night। अब descended means to come down, right? मूव डाउनवर्ड्स। तो अब जैसे सूरज पहले ऊपर रहता है आकाश के, फिर शाम होते होते धीरे धीरे नीचे आता है, तो धीरे धीरे सूरज जो था नीचे आने लगा और रात होने लगी। सडनली दे हर्ड अ टेरिबल नॉइज। अचानक उनको एक बड़ी भयानक आवाज़ सुनाई दी। इट रोल्ड अक्रॉस द ओपन लैंड एंड सराउंडेड देम लाइक थंडर। वो पहले तो जो खुली ज़मीन थी उससे जैसे लुढ़कती हुई उनके पास आई, और उसके बाद उनको सराउंड कर लिया, घेर लिया। किस तरह से? जैसे कोई एक बिजली कड़कती है, उस तरह से। सो इन द लास्ट फ्यू मोमेंट्स ऑफ डे लाइट दे सॉ द इनॉर्मस हेड ऑफ टेरी। आखिर में उन्होंने क्या देखा? जब सूरज की रोशनी थोड़ी सी रह गई थी, तो उन्होंने क्या देखा कि एक बड़ा सा सर है। किसका था वो? टेरी का। द टेरानोसॉरस रेसिंग टूवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ भाग के आ रहा था। टेरी वॉज द टेरर ऑफ द मेन लैंड। जो वहाँ की ज़मीन थी आसपास की, वहाँ के लिए तो वो एक बहुत ही टेरर था, यानी कि डरावना पशु था। He had teeth that were 8 inches long। उसके दांत तो 8 इंच लॉन्ग थे। आपकी स्केल आपने देखी होगी, तो 1 इंच जो होता है उसमें 1 फुट होता है, तो उसकी तो 8 इंच के तो दांत ही थे। एंड द कज़न्स वर इन डेंजर। अब तो भाई ये सब कज़न्स जो थे आपस में, जो भाई बहनें थे, ये लोग तो अब खतरे में पड़ गए। दे टर्न्ड अराउंड एंड पाउंडेड बैक इन द डायरेक्शन ऑफ द स्वैम्प। वो मुड़े और पाउंडेड मीन्स रन स्टडली विथ हैवी स्टेप्स। भागने लग गए भारी कदमों से। कहाँ? अपने दलदल की तरफ। वुड दे मेक इट टू द सेफ्टी? क्या वो सुरक्षा के घेरे में पहुंच जाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे? Although they were twice as large as Terry, they moved like elephants on 4 thick legs। हालांकि वो जो टेरी था, टिरानोसॉरस, उससे काफ़ी बड़े थे, दुगने बड़े थे, लेकिन वो कैसे चल रहे थे? जैसे एलिफेंट्स चलते हैं, क्योंकि उनके 4 मोटी जो टांगें थी, मोटी मोटी, उस पे वो चल रहे थे। Whereas Terry, curling his small front legs before him like a kangaroo,
made enormous fast leaps on his strong back legs. और उधर टिरानोसॉरस क्या किया उसने, अपने जो छोटी आगे की टांगी थी उनको थोड़ा मोड़ लिया और उसके बाद एक कंगारू की तरह कूद कूद के बड़े बड़े, इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, फास्ट लीप्स, बहुत तेज़ कूदें लगाने लगा और भागने लगा। कैसे? अपने पिछली टांगों से। आई प्रेफर प्लेइंग चेस टू बीइंग चेज लाइक दिस, डैनी वेल्ड। डैनी बेचारा दुख से चिल्लाया कि मेरे को तो चेस खेलना ज़्यादा बेहतर था बजाय इस तरह कोई मेरा पीछा करे। सो डू आई, मोन्ड बेन। मोन्ड मीन्स मेड अ लॉन्ग डीप एंड हैप्पी साउंड। तो बेन भी बेचारा कराहा, मेरा भी यही ख्याल है। माई लेग्स आर हर्टिंग एंड आई एम हंग्री एंड फ्राइटन। मेरी तो टांगें दर्द करने लग गई हैं, मैं भूखा हूँ और बहुत ही डरा हुआ हूँ। It's all right, do not give up, Belinda cried. Just keep going till we get to the swamp. उसने कहा कि ठीक, कोई बात नहीं, ऐसे हारो मत। बेलिंडा ने उनको प्रोत्साहित किया, चलते रहो, भागते रहो, जब तक कि हम अपनी दलदल तक नहीं पहुंच जाते। At that moment the sun dropped below the horizon. अब क्षितिज होता है ना, होराइजन, जहाँ धरती आकाश मिलते नज़र आते हैं, तो वहाँ से सूरज जो था वो नीचे चला गया, यानी डूब गया। ब्लैक नाइट सराउंडेड देम एज दो समवन हैड सडनली स्विच्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक लाइट। और उस वक़्त उनके चारों तरफ ऐसे काला अंधकार ने उनको घेर लिया जैसे किसी ने अचानक ही बिजली का बल्ब बुझा दिया हो, लाइट को बुझा दिया हो। इन द डार्कनेस दे कुड स्मेल द स्वॉम्प अहेड। और अंधेरे में उनको अपनी दलदल की महक आने लग गई। फर्स्ट डेनी, देन बेन, देन बेलिंडा प्लंज्ड इनटू द मार्शी वाटर। तो पहले कौन गया उसमें? डैनी, फिर बेन और बेलिंडा लास्ट में। प्लंज मीन्स दे जंप्ड। किस में जंप किया उन्होंने? अपने उस दलदली पानी में। इमीडिएटली their heavy bodies felt light again and they glided away from the shores. तुरंत ही जो था, immediately, at once, their heavy bodies start feeling very light, हल्की हो गई और वो ग्लाइड करने लगे, एफर्टलेसली तैरने लगे, शोर से दूर जाने लगे, तट से। A few seconds later they heard Terry roaring at the swamp's edge. कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने टेरी को सुना गरजते हुए। कहाँ पर? दलदल के किनारे। But his roar became an unhappy wail, for Terry was scared of water. तो वो थोड़ी देर में उसके चिल्लाने के दुख से चिल्लाने की आवाज़ में बदल गई, क्योंकि उसको तो पानी से डर लगता था। So his little front legs were not strong enough for swimming. उसके आगे की जो छोटी टांगें थी वो इतनी मजबूत नहीं थी कि वो तैर सकता, वो भी दलदली पानी में जो थोड़ा थिक होता है, हैवी होता है। As the cousins heard him hop unhappily away, first Danny, then Ben, and then Belinda began to laugh with relief. जब उन्होंने कज़न्स ने सुना उसको कूद कूद के दूर जाते हुए बहुत दुख से, तो पहले डैनी, फिर बेन और फिर बेलिंडा हंसने लगे, बहुत ही जैसे उनको मुक्ति मिल गई हो, ऐसे वो हंसने लगे। बट दे नेवर प्लेड चेज आउटसाइड द स्वम्प अगेन। मगर उसके बाद भैया उन्होंने कभी भी चेज का गेम नहीं खेला उस दलदल के बाहर, डर गए थे ना बहुत। ये देखिए, ये इलस्ट्रेशन है, उसको मफलर पहनाया हुआ है। इन लोगों को देखिए, डायनासोर्स तो मफलर्स नहीं पहनते हैं, उनको इलस्ट्रेटर जो होता है ना, जो फोटोग्राफ्स बनाता है, पिक्चर्स बनाता है किसी कहानी पे बेस्ड, तो उसने उनको मफलर्स बना दिए हैं। सो दैट्स हाउ वी लर्न टू बिकम सेफ। तो ये देखिए, ये है, ये बेन है, उसके बाद सॉरी ये डैनी है, फिर ये बेन है, ये बेलिंडा, और ये है टेरी।
Tyrannosaurus था. So they had a close shave with death. And they could have been, at least one of them would have been caught by Tyre and eaten up. So let's do the question answers. Reading one. Who wanted to play hide and seek? Why was it impossible? So we'll send you the question answers later on. The cousins Belinda, Ben and Danny wanted to play hide and seek, and it was impossible because the trees around the swamp were short for them and could not hide them. What was the difference between the way the three big dinosaurs moved and the way Teddy the Tyrannosaurus moved? All the three cousins had huge four legs to run, but the Tyrannosaurus had two short legs in front and two long legs at the in the hind legs, so that he could run faster than the other three. Now read this line from the story and mark the following sentences as true or false. Alright? True or false, right? So first one is but Belinda wasn't as tall as her cousins Danny, the Diplodocus, who stood amongst almost 90 feet high, or Ben, the Brachiosaurus, who was even taller. So that means who was tallest? Ben was the tallest. True or false? Belinda was a herbivore, plant-eating animal. True. Terry was a carnivore, meat-eating animal. True. Terry could not run as fast as the other three dinosaurs. False. As the three cousins were busy playing, they forgot to return home. True. Terry could swim. False. Now look at the pictures and make compound words. When a word is made up of two words like newspaper, tablespoon, grandfather, basketball, eyebrow, so that is a compound word. So a compound word is made when two words are joined together to form a new word. So this is jellyfish. This is jellyfish. It is a kind of a fish. See, this is jellyfish. Find out from the net how they actually look. Armchair. This is an armchair which you sit and rock on it. Butterfly. This is a butterfly, you know that. Rainbow. This is a rainbow. So we have made compound words. What are conjunctions? See, the words which join two sentences are called conjunctions, like and, but, because, so, etc. Because and so have the same meaning. क्योंकि या इसलिए. So like this here. But they were so much taller, larger than any of the trees. So but here is a conjunction. So you have to fill up conjunctions here. We are not going out to play because it is raining. Shall we play snakes and ladders or some word games on the computer? या फिर
We had planned to play cricket, but the ground is wet now. Lekin we can eat some hot pakoras and some crisp chips too. और आ गए यहाँ पे. It is a holiday, so we can play all day long. इसी तरह प्रोनाउंसिएट करते हैं तो किस तरह आपको उसको सही तरीके से बोलना है. Do not pull the bull into the room. Throw the pin into the bin. से rhyming words हैं ये. Let us praise the donkey for the way he brays. PRAISE. Praise means तारीफ करना. Bray माने रेंकना. तो चलो हम उस गधे की तारीफ करें कि वो कैसे रेंक रहा है. The cub wanted milk in a cup. कब होता है जो शेर, चीते या लेपर्ड के बच्चा होता है उसको कब बोलते हैं. Lion's small one or tiger's small one is known as cub. He left his cap in the cab. Cab होती है टैक्सी. Right? So in the same way now you have to write a message. किसी को आपको अपने मम्मी को पापा को मैसेज करके देना है, वो तो है नहीं घर पे, आपको उन्हें कुछ बताना है, तो आप पहले तो आप उस तारीख लिखेंगे, डेट, ईयर लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, 4 AM और 4 PM. तो आपको क्या मैसेज देना है, किसको मैसेज देना है. योर टीचर was looking for Saumil to return his art notebook. टीचर को आर्ट नोटबुक रिटर्न करनी थी. किसको? सौमिल को. So when she couldn't find him, she gave it to you. उनको मिला नहीं तो उन्होंने आपको दे दिया. अब आपको उसे मैसेज करना है to leave at Saumil's table. आपने उसको उसकी टेबल पे छोड़ दिया. तो आप क्या मैसेज करेंगे? डेट, ईयर, टाइम. Your art book is on the table. Our teacher returned it when you had gone for PT class. PT means physical training. I'm going to the sports ground. See you after school. आदिति. आप कौन है? आदिति हैं. इसको आपको देखकर बताना है what's happening. So what you can see in this photograph, you should be able to write it yourself. This is a park. Here we can see children are playing. Some children are playing football. A pet puppy is also there. A pet cat is also there. Some children are swinging on the swings. There is a dustbin on which is written "Use me." One girl is skipping with a rope. And one girl is flying a kite. The children are doing all these activities. Two birds are flying in the sky. There is a balloon seller also. He is selling balloons. One child is cycling. One girl is cycling. So you can write about these things. A dog is chasing a cat. Two girls are cycling in the park. Three boys are playing football. Two children are
Two children are, you can write down something like playing on the swings. A man is selling balloons, and a woman is walking, right? So when it is one person only, the is used. More than one, are is used. Okay. So this is finished your lesson, except few question answers which you have to do. So I'll soon send them to you. Please write the word meanings in your copy and do the exercises.